Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday I posted one video about promotion from clerical cadre to higher cadres. And in this process, we will discuss all the promotional avenues for clerical, POs, SOs, one by one. Now, the moment a clerical staff goes for promotion and becomes the officer, now he is at par with PO or SO in the bank. Bank maintains a seniority list, and as and when someone become officer, he is placed in the seniority list, and the persons those become officer early, they are senior, those are becoming later, they are juniors. And this seniority acts and helps in further promotion of employees. So a seniority list cadre wise is maintained in the bank. For clerical, seniority list is separate. For officers, scale wise is separate. So there is a separate seniority list for scale 1, scale 2, scale 3, scale 4, scale 5, scale 6 and scale 7. So in this video we will discuss the journey from scale 1 officer to scale 2 officer. Now the moment a person becomes officer from clerk, or he joins as probation officer or as SO, the next promotion is scale 2 promotion, MMG scale 2. Now MMG scale 2 means either he may be designated as manager or depending upon the organization ranks. Now how he can get or she can get this promotion? Usually 2 to 3 type of channels are available for promotion to such officers. One is called seniority route. The senior most people are called for interview, and on the basis of interview and their performance appraisal, they are given promotion. So 3 factors plays the role in promotion. One is called written examination, if it is selectivity channel or fast track channel. Second is interview, and third is performance appraisal. Performance appraisal may have different nomenclature in different banks. That means whatever is your performance during a financial year, based on that, the organization evaluates your performance and certain marks or grading is given by the bank. These are called performance appraisals. And this has very good weightage in promotion. So whenever scale 1 officer goes for promotion, these marks are added along with his or her performance in written examination or interview examination. So in number of banks, the people are eligible after putting in 2 years service. In some banks, they are eligible for after 3 years service. Some banks, they are eligible after 4 years service. So we have to go through the promotion policy of a particular bank to understand when a person is eligible for next rank. So in next rank, he can go through seniority or through selectivity or fast track, depending upon the options available in organization. Some banks offer 2 of routes, some banks offer 3 routes. So we have to go through the policy of that bank. So as an employee, what should be done so that I get early promotion? First thing, I should perform well on regular basis so that my performance appraisal is excellent and I get highest possible marks in that. That lays foundation for my promotion. Second, I must acquire knowledge in banking, finance and economics by reading financial dailies on daily basis. May it be Economic Times, Business Standard, maybe Mint, maybe Financial Express, maybe Business Line. Any good quality financial daily you must read. Even
the videos on this channel on banking, finance and economics will also give you updates and keep you updated. So you can watch those videos also. And then you should read all the manuals of the book. Try to learn everything and always keep a tab on the latest circulars of the bank. So that is your continuous preparation, continuous knowledge acquisition that will help you in promotion as and when it comes. In banking, every promotion brings substantial increase in salary as well as perks. So it is worth it. If you become manager, your salary increase is handsome, as well as you are in a higher rank, you enjoy higher powers, and you get higher perks. So we will discuss in the next video journey from scale 2 to scale 3. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल हमने एक डिस्कशन किया कि क्लरिकल रैंक से हम कैसे कैसे प्रमोशन पाके बहुत हाई रैंक जनरल मैनेजर तक पहुंच सकते हैं. अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब ये क्लर्क अफसर बन गया है तो अब ये आगे कैसे बढ़ेगा. इसी तरह बहुत ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो सीधा अफसर आ रहे हैं, प्रोबेशन ऑफिसर आ रहे हैं, एसओ आ रहे हैं, उनकी आगे की जर्नी क्या है. तो इस वीडियो में हम जो पीओ आ रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, जो एसओ आ रहे हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे, और जो क्लर्क अफसर बने हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको हम समझेंगे. सबसे पहली बात यह है, जैसे ही कोई ऑफिसर बैंक ज्वाइन करता है या कोई क्लर्क अफसर बनता है, उसका नाम एक लिस्ट में ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सीनियरिटी लिस्ट. तो सीनियरिटी लिस्ट में उसका नाम रिफ्लेक्ट होगा उस डेट से जिस डेट से वो अफसर बने. तो बैंक में रैंक वाइज सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन की जाती है जो डिफरेंट चीज़ों में काम आती है, इंक्लूडिंग प्रमोशन. क्लरिकल कैडर के लिए अलग सीनियरिटी लिस्ट होती है और ऑफिसर्स के लिए स्केल वाइज सीनियरिटी लिस्ट होती है. स्केल 1 की अलग, स्केल 2 की अलग, स्केल 3 की अलग, स्केल 4 की अलग, स्केल 5 की अलग, स्केल 6 की अलग, स्केल 7 की अलग. अब जब आप उस सीनियरिटी लिस्ट में आ जाते हैं तो जब भी आपकी प्रमोशन आएगी, जो वहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस का क्राइटेरिया देखा जाएगा वो इस सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा. अब बैंक्स के अंदर स्केल 1 से स्केल 2 की प्रमोशन के लिए अलग अलग रूट्स हैं. कई बैंकों में 2 रूट है, कई बैंकों में 3 रूट है. एक रूट कहलाता है सीनियरिटी. जो आदमी सीनियर है, इंटरव्यू के लिए उसको कॉल किया गया, इंटरव्यू और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे उसकी प्रमोशन हो जाती है. दूसरा रूट होता है मेरिट और सीनियर सेलेक्टिविटी, और तीसरा कहलाता है फास्ट ट्रैक. फास्ट ट्रैक में लेंथ ऑफ कम सर्विस वाले लोगों को भी मौका मिलता है. तो इसमें हमें देखना पड़ेगा हम कौन से बैंक में, हमारे बैंक की प्रमोशन पॉलिसी क्या है. हर बैंक की डिफरेंट प्रमोशन पॉलिसी है. कई बैंक में स्केल 1 ऑफिसर स्केल 2 के लिए 2 साल में एलिजिबल है, कुछ बैंकों में 3 साल की सर्विस के बाद एलिजिबल है, कईयों में 4 साल की सर्विस के. जब यहाँ हम सर्विस की बात कर रहे हैं, टोटल सर्विस नहीं है, ये सर्विस इस रैंक के अंदर, स्केल 1 के अंदर, ठीक है, तो उसको रेकन किया जाता है. तो 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कंसिडरेशन में रखे जाते हैं प्रमोशन के लिए. पहला आपकी रिटन एग्जामिनेशन अगर है तो उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है. दूसरा इंटरव्यू, उसमें क्या परफॉर्मेंस आ रही है. और तीसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल के कितने नंबर हैं. हर बैंक में हर फाइनेंशियल ईयर में जो आप काम कर रहे हैं उसके आधार पे आपकी सीआर बनती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल बनती है, जिसमें मार्क्स मिलते हैं और ये मार्क्स आपकी प्रमोशन में काम आते हैं. इसलिए अगर हम ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रमोशन का आधार बन रहा है. आने वाले टाइम में हमारी अप्रेजल अच्छी होगी, हमारे नंबर अच्छे होंगे, ये हमें प्रमोशन में मदद करेगा. अब रिटर्न की तैयारी हम कैसे करते जाएं. जब हम ऑफिसर बन गए, हमारी निगाह है स्केल 2 बनने में, तो हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की नॉलेज एक्वायर करनी है डेली बेसिस पे. इसके लिए हमें आदत डालनी चाहिए कि एक अच्छा फाइनेंशियल डेली हम रेगुलर पढ़ें, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, मिंट हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, बिजनेस लाइन हो, अपनी चॉइस के अनुसार चुन सकते हैं.
इस चैनल पे भी हमने आपको बहुत सारे अपडेट्स दे रहे हैं फाइनेंशियल के, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। इन वीडियोस को भी आप देखेंगे, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरा सोर्स है आपके बैंक के मैनुअल्स, जो इंस्ट्रक्शन बुक्स हैं बैंक की, उसको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको बेसिक सिस्टम आपके बैंक का पता लगे। इसके साथ साथ जो भी सर्कुलर्स डेली बेसिस पे रिलीज हो रहे हैं या प्रीवियस मंथ्स के हैं, उनको पढ़ना चाहिए, जिसमें ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें कैसे काम करना है। तो जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो इसी पे फोकस्ड है। साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट की नॉलेज, अकाउंट्स की नॉलेज ये एक्वायर करनी चाहिए। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो जल्द से जल्द अकाउंटिंग सीखिए, और जो JIB CIB कोर्स है उससे आपको ये नॉलेज मिलेगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। JIB के अच्छे कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसको जल्द से जल्द करना है, क्योंकि JIB CIB के इंटरव्यू में भी मार्क्स होते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये आप कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब जब स्केल 1 व्यक्ति स्केल 2 बनता है, मीन्स मैनेजर बनता है, तो उसकी सैलरी में क्वांटम जंप होता है, काफ़ी अच्छा जंप आता है, उसके पर्क्स में अच्छा जंप आता है, और उसके स्टेटस में भी अच्छा जंप आता है। तो ये वर्थ इट है। तो यहाँ तक हमने जर्नी कवर कर ली है। स्केल 2 तक कैसे पहुँचे? स्केल 2 का मतलब है मैनेजर, कई बैंकों में और रैंक्स भी दिए जाते हैं। तो मगर इम्पॉर्टेंट होता है आप कौन से स्केल में हैं। तो जो क्लर्क है वो पहले स्केल 1 बने, फिर स्केल 2 बन जाएंगे। जो PO है, SO है, वो स्केल 1 में है, अब वो स्केल 2 में आ जाएगा। आगे की जर्नी हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।